Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are doing basic algebra and algebraic manipulation. Okay, up till now we discussed what is variable. Okay, and then we discussed what are algebraic expressions. And then we performed some arithmetic operations involving algebraic expressions. We did some subtraction and addition. We simplified algebraic expressions having fractions, and then we came to the topic of expansion of linear expressions, and before that we discussed what is a linear expression and what are non-linear expressions, and then we performed expansion of the linear expressions. So now coming to the last topic of the chapter 4, which is factorization. Before I start, what is factorization for algebraic expressions, let's take a basic example, a number example. Suppose if I say 6 is equal to 2 into 3. So what does it mean? It means that 6 is a number and equals 2 into 3 is also numbers. What I am doing is I am expressing 6 as product of another two numbers, 2 and 3. Okay, so the 6 is equal to 2 into 3. So in the algebraic expressions, we are going to do the same. So the definition for the factorization will be that what we are going to do, we are going to express algebraic expression as a product of two or more algebraic expressions. बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं 6 को कह रहा हूँ 6 is equal to 2 into 3 and number is equal to product of two numbers. तो इसी तरह algebraic expression भी क्या होगा, वो भी equal होगा another two algebraic expressions के. Example करेंगे उससे clear हो जाएगा. और another thing is that this factorization is also can be called, it is reverse of expansion. अभी हम example करेंगे उससे आपको clear होगा कि why I am saying it's reverse of expansion. Okay, so let's take first example. (5x plus 10). Okay, a very simple basic algebraic expression. अब we have to factorize this algebraic expression. अच्छा इसको कैसे करेंगे? करने के लिए अब there is a very simple method. हमें इस expression में हमें देख रहे हैं कि कितनी terms है. Like पहली term ये है जिसमें एक variable है, एक variable का coefficient भी है और दूसरा constant है. हमें इस expression के जो terms हैं इनमें देखना है कि कोई चीज common है. Common जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कोई variable भी common हो सकता है, कोई constant भी common हो सकता है, दोनों भी common हो सकते हैं. Like अब अगर हम ये देखें कि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल मौजूद है, दूसरे में नहीं है, so इसका मतलब ये है कि वेरिएबल इज नॉट कॉमन इन बोथ द टर्म्स. ओके, अब यहाँ पे 5 मौजूद है एंड वी नो दैट 10 जो है ये प्रोडक्ट होता है 5 और 2 का. so इसका मतलब 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 हम इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं. तो वही हम काम ये करेंगे. अगर इफ आई टेक आउट 5 एज अ कॉमन, व्हाट एम आई लेफ्ट विद? यहाँ पे 5 कॉमन चला गया, क्या बचा है यहाँ पे? सिर्फ x. ओके, यहाँ पे ये 10 क्या है? 5 into 2. 5 को मैं कॉमन लेके I've taken out, so what is left? 2. So this is factorization of this expression. और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं when we were doing expansion of algebraic expressions, हमने इसको क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था और हम इस एक्सप्रेशन पे पहुंच गए थे. अभी हमने क्या किया? रिवर्स किया ना, कि अभी what we have is a product of two terms or two expressions. ठीक है? Okay, let's take another example. Okay, इस expression में now we have expression over here. यहाँ इस expression में भी दो terms है. First term में 4x यानी एक वेरिएबल x है, दूसरी टर्म -8y, इसमें वेरिएबल y है. सो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल और दूसरी टर्म का वेरिएबल दोनों डिफरेंट है. सो अगेन वेरिएबल कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट है. नाउ हियर आई हैव 4
और यहाँ पे 8 है। ओके, अगर मैं आई टेक 4 एज अ कॉमन, तो ये तो 4 कॉमन है, 4 इंटू 1 4 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 8 क्या होता है, 4 इंटू 2 इज 8, तो यहाँ पे 4 यहाँ भी कॉमन हो सकता है। ओके, लेट्स टेक 4 एज अ कॉमन। यहां से मैंने अगर 4 इज टेकन आउट एज अ कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x। 4 बाहर चला गया, सिर्फ x बच गया। अब यहाँ पे 8 क्या होता है, 4 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 4 को मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा, 2, तो -2y। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। आपको बड़े ख्याल से बस सिर्फ कॉमन देखना है क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3, इफ आई हैव हियर -3x -6। ओके, इस एग्जांपल को अगर आप देखो, इस एक्सप्रेशन में मेरे पास एक टर्म मौजूद है -3x, इसमें वेरिएबल है, दूसरी टर्म क्या है, -6, ये कांस्टेंट है। अच्छा, लेकिन जो एक खास बात और है कि दोनों टर्म्स जो है इस एक्सप्रेशन में, -3x -6, दोनों में ये दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि अब हम साइन भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है। सो व्हेन आई टेक कॉमन, आई विल बी टेकिंग माइनस साइन कॉमन एज वेल। दूसरी चीज कॉमन क्या है, यहां में मेरे पास नंबर है 3, x का कोफिशिएंट जो है, इधर क्या है 6 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, तो यानी 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो मैं कॉमन क्या लूंगा, -3x। ठीक है, अच्छा, अब व्हेन आई हैव टेकन -3x इज कॉमन, तो मेरे पास यहां पे क्या बच गया, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली x। ओके, यहां -6 में क्या है, 2 into 3, so I have taken -3 as a common, तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ +2। अब यहां पे -2, नेगेटिव साइन नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव साइन इज टेकन आउट। यहां पे सिर्फ मेरे पास क्या बचा, +2, सो +2, क्योंकि जो नेगेटिव था वो तो बाहर चला गया। अब इसको अगर आप देखो, अगर आप रिकॉल करो एक्सपेंशन को, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -3 into x क्या मिलेगा मुझे, -3x, -3 into 2 जब करूंगा तो क्या मिलेगा, -6x। तो वही मैं आपने जो गिवन एक्सप्रेशन था उसी पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सो ये तो बेसिक एग्जांपल थी। अभी एक थोड़ा सा जरा बिगर एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, और वेरिएबल को भी हम कॉमन लें और एक नंबर को भी कॉमन लें। वो एक एग्जांपल देखते हैं। और एक चीज उसमें मैं साथ बोलूंगा, व्हेन वी आर फैक्टराइजिंग कंप्लीटली, यानी, और मैं उसमें आपको अभी आप करके दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कब ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। Let's say I have example 2xy minus 4x minus 8x, y and z. So I have this expression. This expression has 3 terms. Okay. अब पहले अगर आप एक्सप्रेशन में पहली टर्म को देखें, तो इसमें 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं और इनका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। दूसरी टर्म में एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और इन 3 वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है 8। अच्छा, अब इस तीनों में अगर हम देखें, वेरिएबल x फर्स्ट में भी मौजूद है, वेरिएबल x इधर भी मौजूद है, वेरिएबल x इधर भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन टेक आउट x एज द कॉमन। दूसरा, 2 यहां मौजूद है। ओके, 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2, सो 2 यहां भी मौजूद है, एंड 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 into 2, तो 2 यहां भी मौजूद है। x भी कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन आएगा। अनदर थिंग, ये पहली टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म नेगेटिव है, और थर्ड टर्म नेगेटिव है। सो इसका मतलब है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक माइनस साइन एज अ कॉमन, बिकॉज वो सिर्फ 2 में है, तीसरे में नहीं है। सो आई एम टेकिंग आउट 2x as a common. When I have taken 2x out of this term, तो मेरे पास क्या बच गया, y। इसमें से मैंने
x भी कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया। अब यहां पे मेरे पास क्या बच गया, 4 क्या है, 2 इंटू 2, एक 2 कॉमन चला गया, बाकी क्या बचा, -2। यहां पे क्या है, 4 इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, -4yz। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करके लिखना हो तो वो भी लिखा जा सकता है, 2x y minus 4 yz -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है ना। ये जो मैंने एग्जाम्पल की है, ये मेरी जो एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको आई हैव फैक्टराइज्ड दिस एक्सप्रेशन कंप्लीटली। अच्छा, इसको मैंने कंप्लीटली क्यों कहा है, इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं और उससे आपको बताता हूं कि व्हाई आई एम सेइंग I have factorized this expression completely. So let's take another example. Example number 5, and I have expression over here 3xy minus 9yw minus 12yz. ओके, सो मेरे पास 3 इस एक्सप्रेशन में टर्म्स मौजूद हैं और लेट्स से मैं यहां पे इसको मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूं। मैं देखता हूं कि यहां पे कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई है, यहां पे वेरिएबल कौन सा है, वाई डब्ल्यू है, यहां पे वेरिएबल कौन सा है, वाई जी है। सो मैं कह रहा हूं ओके, वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, वाई यहां भी है। सो आई टेक आउट वाई कॉमन and I write here 3x minus 9w minus 12z, and I say okay, I have factorized it, but okay, it's a factorization but it's not a complete factorization. So काम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए आपने वेरिएबल को तो कॉमन ले लिया है, बट द नंबर, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इनमें तो अभी कॉमन मौजूद था। इधर इसका कॉफिशिएंट 3 है, इसका 9 है, विच इज 3 इंटू 3, इसका कोएफिशिएंट 12 है, विच इज 4 इंटू 3। सो 3 को भी अभी कॉमन लेना था, हमने नहीं लिया, सो इट्स नॉट कंप्लीटली फैक्टराइज। जब भी फैक्टराइज करना है वी हैव टू फैक्टराइज इट कंप्लीटली। सो ये जो चीज हुई, ये अब इसको हम कहेंगे ये तो गलत स्टेप हुआ। तो फिर क्या इसका सही क्या होना चाहिए था, इसको हम नहीं मानते, ये गलत है। सही क्या होगा, कॉमन हमने लेना है 3 एंड y। 3y अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास व्हेन वी हैव टेकन 3y एज अ कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, x। 3y कॉमन विच इज 3 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आया कॉमन यहाँ पे, 3w। यहां पे 12 is 4 into 3, so 3 is taken common, so minus 4z. So now this is completely factorized. Okay, I hope that you got the idea of basic factorization. So here we conclude our chapter number 4, and it was all about the basics of the algebraic expressions. From the next video, I'll be starting chapter number 5, and when I start chapter number 5, which is linear equations, I'll be taking proper examples from the B1 book. Here it was just to make you understand what are algebraic expressions. Very briefly I discussed with the simple and brief examples. Hope you have understood those examples and कुछ idea हो गया कि basic algebra के। अब जब हम chapter 5 की तरफ जाएंगे तो हमें इस basic algebra का एक idea हमारे पास मौजूद होगा. So thank you very much.